یاد رکھیں میں ہاتھ کا اشارہ کروں نا تو آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے. اس میں ایک فائدہ یہ کہ آپ کو نیکی مل جائے گی, مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا. بات سچی ہے, مجھے سانس لینے کا موقع ملے گا اور آپ کو. تو آپ ذرا کیا کہنا بول رہے ہیں, پیچھے والے بھی بول رہے ہیں. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائی, میلائی کے بیٹے. یہ پیچھے والے ایسے ہی دیکھتے رہے. یا اللہ بہت سفر, وقت بہت کم ہے بھائی, بات مجھے بہت کرنی ہے. سفر نہ روکیے, ذرا سارے ایمانداری سے سچائی کے ساتھ ذرا سبحان اللہ کہہ دیا کریں. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائی, میلائی کے بیٹے بیرت, بیرت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشی, متوشی کے بیٹے لمکن اکرام, لمکن اکرام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحاد, زلحاد کے بیٹے شالح, شالح کے بیٹے عابد, عابد کے بیٹے دادا, دادا کے بیٹے دادا, دادا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخن, ناخن کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے وام, وام کے بیٹے عمر, عمر کے بیٹے سعدی, سعدی کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے عیسیٰ, عیسیٰ کے بیٹے الیاسا, الیاسا کے بیٹے عبد کے بیٹے حوزہ, حوزہ کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے معید, معید کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مدن, مدن کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے حسین, حسین کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں, اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. یہ نور حضرت عبداللہ کے شکم میں پشت میں آیا. حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمینہ سے ہوتا ہے. قسم خدا کی جنہیں تم جہنمیہ کہتے ہو, تمہاری زبان کو فالج کیوں نہیں ہو جاتا ہے, تم اس نبی کی ماں کو جہنمیہ کہہ رہے ہو معاذ اللہ, جس کی پیدائش کے بعد ہی نبی کی آمد کے چرچے ہونے لگے تھے. تیرے کلیجے میں پھانسی کا پھندا کیوں نہیں رہ جاتا ہے, تجھے حیا تک نہیں آئی ہے. کون ہے سیدہ آمینہ, ذرا تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھو. یہ مدینہ شریف کی سرزمین ہے, مدینہ کوئی نیا شہر نہیں ہے, مدینہ وہ شہر ہے جس سے مصطفیٰ کا بڑا پرانا تعلق ہے. اتنا عظیم مدینہ ہے, اللہ اکبر, اتنا گہرا رشتہ مصطفیٰ کا ہے. سرکار کا ننھیال بھی مدینہ ہے, سرکار کے باپ کا ننھیال بھی مدینہ ہے, سرکار کے دادا کا ننھیال بھی مدینہ ہے. بڑا گہرا تعلق سرکار کا مدینے سے ہے. اب ذرا سننا پیارے, میں بتانے لگا ہوں, یہی مدینے کی زمین ہے. اسی مدینے کی زمین پر ایک کاہنہ عورت آیا کرتی تھی جس کا نام سودا بنت زہرا تھا. اتنے پائے کی کمال کی منچوریا تھی کہ ہاتھ دیکھ کے بتا دیتی تھی اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے. ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. اس کائنہ کی بچپن کی کہانی سنو پیارے. جب اپنے باپ کے گھر میں آئی ہے, جس دن اس نے جنم لیا ہے, اس نے اپنے خادم نے اس کو خبر دی جا کر کے کہ تمہارے گھر میں بیٹی آئی ہے, مگر ہے بہت کالی, آنکھیں سخت نیلی ہے. اللہ اکبر, اتنا باپ نے سنا ہے. اس نے کہا تھا اگر میں گوری بیٹی نہیں دیکھ سکتا تو کالی کا چہرہ کیوں دیکھوں گا, جاؤ لے جا کر کے دفن کر دو, مار دو جا کر کے. جب وہ خادم لے کر کے گیا, غلام نے بچی کو دفن کرنا چاہا, آواز آئی اسے قتل نہ کر, اس نے ہاتھ روک لیے. پھر مارنا چاہا, پھر آواز آئی اسے قتل نہ کرنا, تیسری مرتبہ مارنا چاہا, آواز آئی اگر تجھ سے نہیں پلتی تو چھوڑ کے چلا جا, بھاگنے کے لیے اس کا خدا کافی ہے. اللہ اکبر, توجہ ہے, ذرا غور سے سنیں پیارے, وقت بہت کم ہے, بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگا ہوں. اس نے کہا چھوڑ دو, اگر تم ہی لے کے پال نہیں سکتا تو چھوڑ کے چلا جا, میں خود اسے پال لوں گا. اس نے جب یہ آواز سنی تو سوچنے لگا, خیال آیا او یار جسے بچانے کی آوازیں آ رہی ہیں کوئی عام بیٹی نہیں ہوگی, بڑی شانوں والی بیٹی ہوگی. یہ کس کی بات کر رہا ہوں, یہ سودا بنت زہرا کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے جو دفن کرنے آیا تھا اس نے کہا لے چلتے, لے کے چلا گیا پارا. تو توریت, انجیل, زبور کی اتنی بڑی عالمہ بنی ہے کہ یہی سودا بنت زہرا. سننا ذرا, انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا اور نصیحت کے تابوت پہ کیوں ٹھکنے والی ہے.
تیار ہیں نا سارے لوگ ہیں؟ ہاں گھر سے کچھ کھا کے آئے ہو یا خالی لنگر کے سہارے آئے؟ ہاں کچھ نہ کچھ کھا کے آ جایا کرو بھائی، تاکہ سبحان اللہ کہنے کا سہارا بن۔ ہاں ذرا کہتے سبحان اللہ۔ جو کھڑے ہیں نا پیارے، کھڑے ہو کے حضور کا ذکر سن، گھر جانا ماں کے پیر چومنا، کہنا تیرے دودھ کا کمال تھا، سب نے حضور کا بیٹھ کے ذکر سنا کہ میں نے کھڑے ہو کے حضور کا ذکر سنا۔ سبحان اللہ سبحان کھڑے والے بھی کھڑے ہو کے سنے، بیٹھنے والے بیٹھ کے سنے، بس سنیں۔ تو یہ جب جوان ہوئی تو لکیریں دیکھ کے بتا دیتی تھی، لکیریں دیکھ کے بتا دیتی تھی کہ اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ ایک دن مدینے میں شور ہو گیا، ادھر حضرت آمینہ کی عمر شریف تقریباً 6 یا 7 برس ہے، شور ہو گیا مدینے میں، سودا بنت زہرا آ رہی ہے، لوگوں اپنی اپنی ہتھیلی دکھاؤ، تقدیر پوچھو۔ آنے سے پہلے لائن لگ گئی، سودا بنت زہرا آئی، لکیریں دیکھتی اور یوں دیکھ کے فیصلہ کر دیتی، تیرے نصیب میں یہ ہے، تیرے نصیب میں یہ ہے، تیرے نصیب میں یہ ہے۔ بچے بوڑھے جوان ہتھیلی دکھاتے جا رہے، گزرتے جا رہے، دور کھڑی نبی کی امی 6 سال کی عمر شریف میں یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ کسی نے کہا آمینہ تو بھی اپنا ہاتھ دکھانا، دیکھیں تیرے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جیسی سیدہ آمینہ آگے آئی ہے، آنے کے بعد سودا بنت زہرا کے آپ نے اپنا آپ نے ہتھیلی کو کیا ہے۔ سودا بنت زہرا نے جیسی سیدہ کی ہتھیلی دیکھی ہے، کبھی ہتھیلی دیکھ رہی ہے، کبھی چہرہ دیکھ رہی ہے، کبھی ہتھیلی دیکھ رہی ہے، کبھی چہرہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، بڑے ماتھے پہ پسینہ صاف کرنے لگی، سب نے کہا سودا عطا تو سکی، سب کی ہتھیلی دیکھتے ہی بتا دیا، آخر اس کی ہتھیلی میں ایسا کیا ہے جو تو بتا رہی ہے۔ اس نے پسینہ پوچھا اور کہا تھا لوگوں حاضر النذیرہ اور ذلت النذیرہ، اس نے کہا تھا لوگوں اس کی لکیریں بتا رہی ہیں، یا تو یہ نبی بنے گی، یہ نبوت ایمان کی ماں بننے والا ہے۔ پتا چلا اللہ نے زندہ کسے رکھا، یہ تو مر رہی تھی لیکن خدا نے بچایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے حضور کی ولادت کا اعلان کرانا تھا۔ پتا چلا جو میلاد والے ہوتے ہیں وہ مارے نہیں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بتایا حضرت سیدہ آمینہ، ان کو لوگ کہتے ماذ اللہ جہنمی ہے، قسم خدا کی نہ نبی کی ماں کا جواب ہے نہ نبی کے باپ کا جواب ہے۔ یہ ذکر میں جان بوجھ کے چھیڑ بیٹھا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے اگر میں آپ کی ماں کی تعریف کروں تو آپ خوش ہوں گے، میں نے آمینہ کا ذکر چھیڑا ہے، گنبد خضرا میں مصطفیٰ مسکراتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے حضور کی امی کا ذکر چھیڑا۔ اور سنیں ماں یہ ہے، پھر باپ حضرت اور سنو تم تو نبی کے میلاد کے معنی مرے جا رہے ہو۔ جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تب یہود و نصارہ میں کھلبلی مچ گئی تھی، سر جوڑ کے بیٹھے، بولے آج وہ ستارہ چھپ گیا۔ کہا کون سا؟ کہا جس کے چھپنے پہ عبداللہ کی آمد کا اعلان ہے، کہ ہماری کتابیں بتا رہی ہیں کہ اب وہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اور نبوت بنی اسرائیل سے اب حضرت اسماعیل کی نسل میں جانے والی ہے۔ کہنے لگے کیا کرنا، روکے کیسے؟ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ایسا کرو عبداللہ ہی کو قتل کر دو، نہ عبداللہ ہوں گے نہ محمد رسول اللہ آئیں گے۔ لیکن پتہ نہیں تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ انہیں پتہ نہیں تھا جب یہ نور حضرت ابراہیم کی پشت میں تھا تو جلنے نہیں دیا، ہاں جلنے نہیں دیا، اسماعیل کی پشت میں آیا تو قربان مطلب گلا کٹنے نہیں دیا، تو پھر عبداللہ کو کیسے مرنے دے سکتا تھا؟ سوچو تو صحیح، بیٹھ گئے سر چھوڑ کے، کہا کیا؟ کہا بھائی بہادر پکڑو کوئی گھر کا، ایک ہی چنا جاتا ہے، بہادر پکڑو۔ اکٹھا ہو کے سب نے کہا بھائی دیکھ تو عبداللہ کا سر لے آ مکے سے جا کر کے، اور تجھے ابھی اتنا پیسہ دیں گے کہ اگر تم مر بھی گیا نا تو تیری نسلیں بن جائیں گی۔ تو دولت بری بلا ہوتی ہے، لالچ
बुरी बला होती है। लेकिन जानते हो इसने तो तय कर लिया कि जाऊंगा भाई, मैं ले आता हूँ। सफर दिन और रात के करके ना हरम शरीफ के दरवाजे पे पहुंचा। अजनबी था मक्का शरीफ में, कोई दूसरा था ही नहीं। जब अजनबी था तो इसने सोचा कौन है यार, मैं किससे बात करूं और कौन मुझे अब्दुल्ला के बारे में बताएगा। तो इसने देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं, सारे बच्चों के चेहरे पे नजर डाली ना तो उसमें सबसे हसीन चेहरा हजरत अब्दुल्ला ही का नजर आया। और बस देखा ना उनको और देख के बस ठहर गया, कहने लगा यही बच्चा मेरे काम आएगा। बुलाया हजरत अब्दुल्ला को, आप आए, क्या बात है? कहने लगा बेटे मैं किसी काम से आया। कहा क्या काम है, मुझे बताओगे अब्दुल्ला कौन है? हुजूर के वालिद थे, कोई आम नहीं थे। हाँ, मुस्कुरा के कहने लगे काम तो बताइए। कहने लगे काम बड़ा अहम है, पहले अब्दुल्ला का पता बताइए। फरमाने लगे मैं अब्दुल्ला का पता बता दूंगा लेकिन आप काम बताओ। तो उसने कहा वादा करो किसी को बताओगे तो नहीं। आपने फरमाया जाओ वादा किया हम किसी को बताएंगे नहीं। उसने कहा बेटे तुम्हें नहीं पता है, हमारी किताबों में लिखा है कि अब्दुल्ला आखिरी पैगंबर का बाप होगा और हमारी कौम ने उसका सर काटने भेजा है। तो आप मुस्कुराए, फरमाने लगे आपके चेहरे पे भी गर्द है, कपड़ों पे भी गर्द है, दूर के मुसाफिर लगते हो। कहा हाँ। फरमाने लगे बैठ जाइए, पहले कुछ खा पी लीजिए। सुभान अल्लाह। अखलाक 7-8 साल की उम्र शरीफ हुजूर के वालिद की है। हाँ, कहने लगे बैठ जाइए, पता है कत्ल करने आया है, ये भी पता है सर लेके जाएगा, लेकिन कहते बैठ जाइए। बैठाया, काबे की दीवार से टेक लगा के घर तोड़ के तशरीफ लाए। एक हाथ में खजूर का प्याला, दूसरे हाथ में पानी का प्याला लेकर के दौड़े जाकर के पेश किया, लो ये पानी पी लीजिए, ये खजूर खाइए। कातिल ने पानी भी पिया है, पानी पिया, खजूरें खाई है। जब सैर हो गया कहने लगा अब तो बताओ अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे? आप फरमाते तुम्हें क्या मिलेगा? अल्लाह अकबर। उसने कहा जब सर लेके जाऊंगा मुझे दौलत से नवाजा जाएगा, मुझे इनाम दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला मुस्कुरा के कहते हैं ये भी तो हो सकता है कि जिस अब्दुल्ला का तुम सर लेने आए हो वो अब्दुल्ला बाप की दिल का चैन हो। ये भी तो हो सकता है वो अब्दुल्ला माँ की आंखों का करार हो। अगर तुम उसका सर लेके जाओगे तो तुम्हें पता है माँ बाप पे क्या गुजरेगी। उसने कहा बात ये नहीं है, ये मेरी कौम की प्लानिंग है, हमें आखिरी पैगंबर को नहीं आने देना है, हमें सर लेके जाना है। आप कहते हैं कर सर लेके जाना है, आगे बढ़े गर्दन झुका दी, कहा तो काट ले मेरा सर। उसने कहा कैसी बात करते हो, तुम तो वो हो जिसने पानी पिलाया है, जिसने खजूरें खिलाई है, मैं तुम्हारा सर क्यों काटूं? मुझे अब्दुल्ला का पता बता दीजिए। आप मुस्कुरा के कहते हैं जिस अब्दुल्ला की तलाश में तू आया है वो कोई और नहीं है बल्कि मैं ही वो अब्दुल्ला हूं। इतना सुनना था, कदमों पे गिर गया, कहने लगा बाप दीजिएगा, मैं सर लेने आया था, तेरे कदमों पे जान देने तैयार हो। उसने कहा कि जिसकी पेशानी में मोहम्मद का नूर है, अगर उसके ऐसे अखलाक हैं तो खुद आखिरी पैगंबर के अखलाक कैसे हैं? ये हुजूर के आने से पहले मिलाद होता है। और सुन, ये मिलाद सिर्फ झंडी में नहीं हुआ, ये तलवार के साए में भी हो रहा है। हाँ, उनके नाम पे आने से पहले तलवारें झुक गई थी। और आज तेरे आगे यूं हैं दबे बचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। ये हुजूर की शान, हुजूर के वालिद की शान है। इधर हज़रत अब्दुल्ला जवान, हज़रत सैयदा आमिना जवान, दोनों जवान हो गए। तो कसम खुदा की इफ़्फ़त और पाकीज़गी के मरकज़ को आमिना कहा जाता है। हाँ, और तहारत और सदाकत और हया के कोहे गिरा को अब्दुल्ला कहा जाता है। ना अब्दुल्ला जैसा कोई जवान था, ना आमिना जैसी कोई बादशाह थी। सुने बहुत गौर से, मैं बात करने लगा। एक दिन ना वहाब बिन मुनब्बा बैठे थे, हजरत आमिना आगे लेटी, वो आपकी ज़ौजा ने देखा, बड़ी गौर से आप आमिना को देख रहे थे। वालिद हजरत आमिना की यानी कि हुजूर के
नाना, समझ रहे हैं ना, हुजूर के नाना। बहुत गौर से बेटी को देख रहे, बीवी कहने लगी मेरे साथ आज क्या बात है, आंख में आंसू आ गए। कहने लगे मैं ये सोच रहा हूँ अल्लाह ने इतनी हया वाली बेटी तो दे दी है, इसकी जोड़ का बेटा कहाँ से लाएगा। रोने लगे। हर बाप को बेटी जब जवान होती है तो फिक्र होती है, सबको फिक्र होती है। नौजवानों कभी भी दौलत न देखना, अगर निकाह करो ना तो फिर पाकीज़गी देखना, तहारत देखना, शराफत देखना, तकवा देखना, इल्म देखना, हया देखना। जितनों ने दौलत देखी आज मारे मारे फिर रहे हैं, जिन्होंने हया देखी है वो गरीबी में भी मुस्कुरा के जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी भी अगर रिश्ते की बात आए ना तो कभी दौलत के चक्कर में नहीं पड़ना, बेशक, ठीक है जी। लेकिन आज हमारी वजह से बेटियां मर रही हैं। किसका? ये कड़वी सच्चाई, कड़वी सच्चाई है। हम कल नारे तो लगाएंगे सरकार की आमद बढ़ावा, लेकिन जरा सच्ची बताना, क्या हमारे दिल इतने साफ होंगे जितने हमने घर सजाए? सलीम नाम मुझे बताइए, हम घरों की लाइटिंग तो करते हैं, दिल की लाइटिंग कब करें? हमने घर की सफाई भी कर ली, दिल की सफाई कब करें? इस दिल से कदूरत कब निकलेगी, इस दिल से नफरतें कब निकलेंगी? इतना बड़ा मजमा मेरे सामने है। मैं हुजूर की उम्मत के बीच में बैठ के बात कह रहा हूं। मैं दावे से नहीं कह सकता कि किसी के दिल में किसी की कोई कदूरत नहीं। आज ये हमारी कौम है, सजदों में भी जाके गिरती है ना, नाक रगड़ के कहती सुभान रब्बी अला। अल्लाह फरिश्तों से हुक्म देता जाओ इससे कह दो ये मेरे आगे सजदा कर रहा है, इससे कहो पहले अपने दिल का मैल निकाल के आए। अगर तेरे दिल में तेरे भाई के लिए जगह नहीं है तो तेरी सजदों की भी मेरी बारगाह में कोई जगह नहीं है। क्या वजह है हम सजदे भी बराबर कर रहे हैं, धब्बे पड़ गए, लेकिन अभी तक हमारे अखलाक बेहतर नहीं। कब होंगे हम बेहतर? ओ भाई इस बार घर भी सजाना है, दिल भी सजाना है। बोलो इंशाअल्लाह। नौजवानों घर भी सजाना है और दिल भी सजाना है। घर में फरिश्ते आते हैं, दिल में हुजूर आया करते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह दिल की भी सफाई। तो दिलों की सफाई कैसे होगी? आज 90% जवान मोबाइल में बर्बाद है, मोबाइल में बर्बाद है। जिनके निकाह हो गए वो दूसरे निकाहों के चक्कर में पड़ेंगे, जिनके नहीं हुए हैं वो अपना सारा अय्याशी और बदमाशी में गुजारने में लगे हैं। खुदा के वास्ते अगर एक अच्छी नस्ल चाहते हो ना, अच्छा मुस्तकबिल चाहते हो, तो फेंक दो मोबाइल हाथों से। इन्हें जरूरत के वक्त इस्तेमाल करो, बिना जरूरत हाथ में ना लो, वरना ये मोबाइल एक दिन तुम्हारे हाथ में कटोरा पकड़ा दे। सही है, कड़वी सच्चाई है। एक दिन हाथ में प्याला होगा और दुनिया कहेगी ये है उस नबी के मानने वाले जिसने जाहिल कौम को इल्म की सौगात दी। क्या ये कड़वी सच्चाई नहीं? जिस उम्मत को 4 बजे उठना था वो 10 बजे उठ रही है, जिनकी 11 बजे आंखें खुल रही थी आज वो 3:30 बजे उठ रहे हैं। ये कड़वी बात नहीं है। और अब्बा अल्लाह माफ करे, अब्बा भी कम नहीं है हजरत, अपने बेटे के ऊपर चादर डाल के आता है और इमाम की चारपाई उल्टी करता है। अगर 5 मिनट इमाम लेट हो गया तो फिर नहीं, फिर तो इमाम दूसरा ही चाहिए। क्या बात, हाँ बिल्कुल, इमाम दूसरा ही चाहिए। 5 मिनट लेट क्यों हुआ? जरा दिल पे हाथ रख के बता, नमाज सिर्फ इमाम पे फर्ज है, तेरे बेटे पे फर्ज नहीं? बोलो, सब पे फर्ज है। अपने बेटे को चादर उड़ा के आता है, इमाम की चादर खींचता है और फिर बाहर खड़े होकर कहता है इसके पीछे मेरी नमाज नहीं हो रही, इसका अंगूठा हिल गया, इसका पैर हिल गया। मैं कहता हूं हया कर, तू अपना सजदा कर रहा था या उधर उधर छांकी मार रहा है? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। समझ में बात नहीं आती। कौम किधर जा रही है हमारी? कहता उठाए क्यों नहीं? जी हजरत वो जो है ना बेटा 3 बजे सोता। क्यों? IAS की तैयारी कर रहा है क्या? IPS बनेगा?
नहीं वो मोबाइल चलाता रहता हो, बेगैरत बेहया बेशरम कहीं के। तेरा बेटा 3 बजे तक मोबाइल चला रहा है, तू पूछना उससे रात के 3 बजे तुझे मोबाइल में क्या काम है? जब दुनिया सो जाती है तब तू मोबाइल में क्या कर रहा है? और मेरी बात याद रखना प्यारे, जो कौम रात को 3 बजे सोएंगी वो 10 बजे से पहले नहीं उठेगी, और जो फजर में सोता रहता है फिर उस कौम को भीख मांगने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हें पता तक रही है, मेरे हुजूर ने फरमाया था जल्दी सोया करो जल्दी उठा करो। किस लिए कहा था? जब तुम सुबह को जल्दी उठते हो और तुम दुकान के लिए निकलते हो, जब फजर की नमाज पढ़ने आते हो, पहले अज़ान की आवाज आती है, हैया अला सलाह हैया अला फलाह, और नमाज की तरफ, कामयाबी की तरफ। तुम्हें नमाज की तरफ बुलाया गया, तुम चादर ओढ़ के लेटे रहे। कामयाबी की तरफ बुलाया गया, चादर ओढ़ के लेटे रहे। 10 बजे जाके दुकानें तुमने खोली है, फिर कहते बरकत नहीं होती, मौलवी तावीज दे दे। वो तावीज नहीं, पूरा कुरान गले में लटका ले, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा जब तक फजर की उठ के जमात से तू नमाज अदा नहीं कर रहे हो। बहुत अच्छे, कुछ तो कड़वी लगी, कुछ तो कड़वी लगी। तवज्जो है ना? वो भाई अपने गरिबान में झांका था, जो 5 टाइम की नमाज पढ़ने जा रहा है तो वो मौलवी का इम्तिहान ले रहा है इमाम का। वो एक जगह मुफ्ती साहब मेरे बड़े काबिल दोस्त हजरत, जो दरसे निज़ामी की सारी जमातें पढ़ाता हो, हम लोग समझ सकते हैं वो काबिल ही है। तो लॉकडाउन में मदरसे बंद हुए, मुफ्ती साहब चले गए एक जगह नमाज पढ़ाने। इत्तेफाक से उसी दिन मेरी तकरीर थी। भाई एक बार सारा मसला अपना निपटा लो। हज़रत मोहतरम एक ज़रूरी सवाल फरमाएं, जिनकी गाड़ियां रास्ते पर है लगी हुई, बराए करम गाड़ियां हटा लें। आने जाने वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ के बच्चे जो सुभाष नगर के बच्चे वो लोग आए हुए थे, उन लोगों को संभाला गया किसी तरह से। रोड पे कतई गाड़ी ना लगाएं, गाड़ी लगाएंगे तो झगड़ा बढ़ेगा, जलसा खराब होगा। जलसे खराब करने की कोशिश ना करें, बराए करम गाड़ियां साइड में लगाएं, भले दूर दराज में लगाएं, गाड़ियां दूर में लगाएं, रोड पर कतई ना लगाएं। तो मेरे एक दोस्त वो मुफ्ती साहब जब वहाँ पे इमामत करने गए, इत्तेफाक से मौजूदीन तकरीर करने गए, तो एक आदमी ना जलसे में से उठ के कहने लगा कि पता क्या कहा? उसने कहा जी पहले हमें मुफ्ती साहब का इम्तिहान लेना। अच्छा, कौन कह रहा था? जिसे बिस्मिल्लाह तक याद नहीं ढंग से, वो मुफ्ती साहब का इम्तिहान। मैंने कहा कैसे लोगे? बोले इनकी तकरीर करवाओ। मैंने बार का बार तकरीर का मुसल्ले से क्या लेना देना? इसे यही पता नहीं सुनना क्या है, पूछना क्या है। वो मुफ्ती बना घूम रहा है। तुझे पता है जो उलमा की तौहीन करता अल्लाह उसके साथ पुश्तों से इल्म की दौलत उठा लेता है। याद रखना, जो उलमा की तौहीन करता है ना, उससे पैसे नहीं लिए जाते, उसका मकान नहीं गिराया जाता, उसके बैंक बैलेंस खत्म नहीं किए जाते, उसकी 7 पुश्तों में फिर आलिम पैदा नहीं किए जाते। और ये बहुत बड़ा अज़ाब है जिसकी 7 पुश्तों में आलिम पैदा। इसलिए मेहरबानी करें, इमामों के पीछे ना पड़े, अपने पीछे पड़ जाइए, अपने आप को देखें। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से क्या पढ़ने लगा? अब तो इमाम ही नहीं रुकने दे रहा, जुम्मे जुम्मे भगा रहे, जुम्मे जुम्मे इमाम भगा रहे। मौज आ रही है, वो ऐसे बैठे मुखिया बन के, हाँ भाई कौन है? ऐसा लगता है जैसे कि इसे फरिश्ते बैठा के गए, जब तक तू नहीं पूछेगा इमाम ही नहीं टिकेगा। शर्म कर, अगर इमाम ने पूछ लिया इस्तिंजा कैसे करते तो सही है। हाँ, छठी का दूध याद आ जाएगा, इस्तिंजा करना नहीं बता पाएगा। इमाम से पूछ रहा कैसे पढ़ाते हैं? इम्तिहान लेगा इमाम। वो घमंड कम कर, 2-4 सजदे करने लगा है ना तो फिर अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह इन्हें कबूल कर। तुम नहीं जानते वो बड़ा बेनियाज है, बड़ा बेनियाज है। अगर वो मुंह पे मारे ना तो परसों की आदत मुंह पे मार देता है, और कबूल कर रहे तो 2 कतरों के बदले में जन्नत दे देता है। 2 कतरों के बदले में। भाई खुदा के वास्ते ये फसाद खत्म करें, झगड़े खत्म करें, समझ रहे ना मेरी बात? तुमसे गुजारिश है जवान, अब हमें क्या करना है? निकाह करने के लिए हमें कैसी लड़की तलाश करनी है? पाकीज़ा, दीनदार, नेक। कुछ तो इसलिए घूर के देख रहे मौलवी हमारा जहेज मरवा देगा। तुम्हारे बाप ने लेके रख दिया था क्या? लिस्टें लिए घूम रहे, लिस्टें। जी जी बताओ ये गलत बात है हजरत? मैं कहने लगा हूं, सुने, हमारे बाप ने इसलिए 22 साल तक सोफा नहीं खरीदा कि बेटे की बीवी लेके आएगी।
है ना हजरत? जाओ जिनके अभी तक बेटों की शादी नहीं हुई है और पुराने लोग हैं, दिखा दो किसी के घर में बेड पड़ा हो तो एक चारपाई की पट्टी जोड़ जोड़ के जी दिया, जोड़ जोड़ के जी दिया, यहां से टूटी वहां बांधी, वहां से टूटी वहां ठोकी, नहीं ला रहा बहू लेके आएगी, सोच में जी रहे हैं। और फिर जब जहेज वाली लाए आ गई तो भाई मुसीबतें, और जवान कितना अच्छा करे अम्मा देखे, लड़कियां देखने भेज रहे हैं ना, तो हम कितने बेवकूफ हैं ये भी सुन लो, कितने बेवकूफ हैं। निकाह किससे होता है? एक से होगा ना, एक ही से तो निकाह होगा ना, बोले ये वो काम की बात बता के जा रहा हूं जो तुम्हारे बाप तुम्हें नहीं बताएंगे, इसलिए कि अगर उन्होंने बता दी तो उनके बेटे को जहेज में फिर कार, और बुढ़ा मरा जा रहा कार के लिए, जबकि एक बार भी नहीं बैठेगा। हाँ हजरत, बेटा एक बार कार में नहीं बैठा था और ये मर गया, कार जरूर चाहिए। शर्म कर, और तुमने लड़की देखने के लिए भेजी।